this is the video introduction for exercise 1.3 class 11 sets. In this video we will discuss subset of a set. Subset of a set. Subset of a set. Subset जैसे नाम से ही पता है छोटा सेट. Let's have an example. A is set of all students of your school. A is set of all students of your school, and B is set of all students of class 11 of your school. We have considered two sets, A and B. Set A and set B. Set A कौन सा सेट है? A is set of all students of your school. आपके स्कूल के सभी बच्चों का एक सेट बनाया हुआ है. दूसरा सेट हमारा कौन सा है? सेट B. B is set of all students of class 11 of your school. B सेट में क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं. Suppose we have written set A in roster form. तो roster form में सभी के नाम आएंगे, सभी स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. तो उसमें एक बात नोट करने की है कि कहीं ना कहीं जब हम क्लास सपोज 12th से शुरू कर दें, 12th के सभी बच्चों के नाम लिख देंगे, फिर 11th के सभी के, फिर 10th के, 9th, 8th एंड सो ऑन. तो कहीं ना कहीं हमारे 11th के बच्चे हैं जो, उन सभी के नाम सेट ए में भी आते हैं, सेट ए में भी इंक्लूडेड है, कंटेन्ड है. तो इस तरह के जब सेट होंगे तो जो छोटा सेट है हमारा, जैसे अब बी सेट है, दिस इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए. कैसे डिफाइन करेंगे? सभी लिखेंगे. डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन ए सेट बी के बारे में बात हो रही है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया है, इज सेट टू बी सबसेट जिसकी बात हो रही है, जो डिफाइन करना चाह रहे हैं, सबसेट ऑफ सेट ए. सबसेट ऑफ सेट ए सेट का सबसेट कब होगा? इफ ऑल द एलिमेंट्स, और यू में से members, all the elements of set B also elements of set A. What does it mean? B set A set का सबसेट कब होगा? जब A के सभी एलिमेंट्स या मेंबर्स B के भी मेंबर्स हों. तो B is called then B is called subset of set A. B is called subset of set A. What we will use the symbol for it? Symbols. सबसेट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम? सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट. If B is subset of A, तो we will write it like symbolically, B is subset of A. Or we can use this symbol, equal to का साइन नहीं लगाएं, instead of this symbol. इस सिंबल की बजाय हम ये सिंबल भी यूज कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. बोथ आर राइट. ये इक्वल टू किस लिए है? बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए ये सिंबल भी लगता है इसके साथ में. तो यहां बी इज सबसेट ऑफ, कैसे रीड करेंगे इसको? बी इज सबसेट ऑफ ए, या set B is subset of set A. B is subset of set A.
और यू में राइट बी कंटेन्ड इन ए। बी किसके अंदर है? ए के अंदर है। सेट बी कंटेन्ड इन सेट ए। बी सेट ए के अंदर कंटेन्ड। तो बी के सभी एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट हों तो बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट ए। अगर हम बी को इसका सबसेट कह रहे हैं तो ए को क्या कहें? ए को भी कुछ तो नाम देना चाहिए, बिकॉज ही इज हैविंग समथिंग मोर। तो ए को कहेंगे हम इफ all elements of set B are also elements of set A, then B is subset of set A, or you may write B is subset of A, and A is called superset. A is called superset of set B. A क्या कहलाता है? सेट B का सुपरसेट। और you may write A contains B. A B को अपने अंदर रख रहा है, and symbolically you may write A is superset. उल्टा कर देते हैं इसको, superset of B. We will read it. A is superset of set B. You write it like this also. A superset B. A is superset of set B. Set in set language, if you want to write in set language, if A and B are two sets, X belongs to B. A and B we are having two sets, X belongs to B. This implies that, this meaning is, this symbol is for, this implies that X belongs to B. X B से belong करता है. This implies X belongs to A, और X A से भी belong करता है. Then B is subset of A. B is subset of A. Having some example. A is set of all X such that X is an integer. A is set of all X such that X is an integer. Integer we all know, positive, negative, zero, all numbers are there which can be expressed easily on number line. B is set of all whole numbers. तो अगर हम integers को देखें तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 goes on, -1, -2, -3 it goes on. And whole numbers को देखें तो 0, 1, 2, 3 it will like this. तो this all are contained in this one. ये सारे के सारे इसमें हैं. तो we can say that B is subset of A. B is subset of A. ये सारे के सारे नंबर whole numbers are included in integers. और अगर हम ये करना चाहें B A is subset of B or not, क्या A B का सबसेट है कि नहीं है? क्या B के A के सभी एलिमेंट B में हैं? नो. तो कैसे लिखेंगे? A is not subset of B. कैसे रीड करेंगे इसको? A is not subset of set B. A is subset of B, A is not subset of B, but B is subset of A. एक एग्जांपल और लेते हैं. A में हमारे 1, 2, 3 एलिमेंट, B में है A, B and 1. क्या यहाँ पर A के सभी एलिमेंट B में हैं? नहीं है. क्या B के सभी एलिमेंट A में हैं? नहीं है. तो B is not a subset of A. A is not a subset of B. We can easily say. तो यहाँ पर क्या होगा? B is not subset of A and we may say A is not subset of B. A के भी B में नहीं है.
ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो क्या होगा देखते हैं। सेट ए में ले लिया मैंने, ए सेट लिया, ए सेट में लिया 1 2 3, और सेट बी रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो क्या देखते हैं इसमें, यहां पर अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3, बी में कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, तो विल से ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड all elements of set B are also elements of set A. B के सभी एलिमेंट A के भी एलिमेंट हैं, तो we can say that B is subset of A. If somewhere this condition holds, A is subset of B, B is subset of A, this shows A is equal to B. A और सेट B कैसे होंगे हमारे, इक्वल सेट्स होंगे। A is subset of B, B is subset of A, then A is equal to B. Let's discuss some more example. A सेट हमारा 1 2 3 4 5, B है हमारा 1 3 5, तो क्या है हमारा A is subset of B, sorry B is subset of A, B is subset of A, B is subset of B के सभी एलिमेंट A में है। A में A E I O U है, B में कौन से A B C D E, तो B is not subset of A। चेक ये लिख लेते हैं, चेक वेदर B is subset of A or not, B is subset of A or not। थर्ड पार्ट, A is set of all x such that x is real number, और B में कौन से हमारे all x such that x is rational। हमें पता है रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी, तो यहां क्या होगा B is subset of A। नेक्स्ट हमारा A सेट है 2 3 और B है x is प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आल्सो है 2 3, इसमें भी 2 3 है, 2 and 3। तो वी कैन से दैट A में कौन से आ गए 2 3, B में कौन से हो गए 2 3, तो इन दोनों सेट में कोई फर्क ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो सेट ए, दिस इज ऑल्सो सेट ए। तो फर्स्ट वी विल से ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सेट ए, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, दिस इज ट्रू, बी इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट अगर फर्दर हम करना चाहें, अगर हम इस सेट को दोबारा से मैं कोई और नाम दे दूं, दिस इज सेट ए, अगर इसको ऐसे लिख दूं x such that x is prime factor of 6, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे 2 and 3, 2 and 3। तो व्हाट डज इट मीन, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, ए के सभी एलिमेंट ए में हैं, यस। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप में उसका सबसेट होता है। इसकी कुछ एक दो प्रॉपर्टी और लिखते हैं, क्या है अभी लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट करते हैं। फर्स्ट है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। व्हाट डज इट मीन, एक सेट लेते हैं ए में हमने एलिमेंट लिए 1 2 3, एक दूसरा सेट और लिख लेते हैं ए 1 2 3, या दोबारा ना भी लिखें तो हम कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसी के मेंबर हैं, और हमारी कंडीशन क्या है सबसेट की, ए सेट इज सबसेट ऑफ ए सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज आल्सो द मेंबर ऑफ द अदर सेट,
यानी हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट के मेंबर दूसरे सेट के मेंबर हों तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। तो इस सेट के सारे मेंबर इसी के मेंबर हैं, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5, दिस इज 5, और वी मे राइट इट लाइक दिस आल्सो, नल सेट, एम्प्टी सेट। कोई भी सेट लें, सेट ए ले लेते हैं, ऊपर हमने लिख रखा है सेट ए ले लेते हैं। इसके सभी एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कुछ चेक ही नहीं करना हमें इसमें जो कुछ है या नहीं है। इसमें हमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें क्या चेक करें कोई एलिमेंट है कि नहीं है, तो दिस इज ट्रू। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, सपोज लिखा बी, मैंने लिखा 1 2 3 4, और फिर लिख दिया हमने सी सेट लिख लिया 1 2 3 4 5। चेक इट नाउ। ए इज सबसेट ऑफ बी, A all contained in B and B contained in C. B के सभी एलिमेंट C के सभी एलिमेंट है। A is subset of B, B is subset of C, then A is subset of C. Therefore, if A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C। A C का भी सबसेट होगा, क्योंकि A के सभी एलिमेंट B में हैं, B के सभी एलिमेंट C में हैं, तो ऑब्वियसली A के सभी एलिमेंट C में होंगे। वी हैव टेकन एन एग्जांपल, एन एलिमेंट इज नेवर बी ए सबसेट ऑफ ए सेट। सपोज वी हैव टेकन सेट A, ये हमारा 1 2 3, वी कांट से 1 इज सबसेट ऑफ A, ये ऐसा नहीं हो सकता। 1 बिलोंग्स टू A है, 1 A का एलिमेंट है, इसका मेंबर है, बट इट इज नॉट सबसेट। सबसेट सेट होगा न कि एलिमेंट। किसी भी सेट के जब सबसेट लिखेंगे या लिखेंगे अभी आगे चल के, तो वो क्या होंगे, सेट होंगे, नॉट एन एलिमेंट। तो एन एलिमेंट इज नेवर बी ए सबसेट ऑफ ए सेट। जैसे एग्जांपल या 1 2 3, 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, 2 is not subset of B, A, sorry. 3 is not subset of A. They belongs to, 2 belongs to A. 2 belongs to A. आगे करते हैं पावर सेट। Power set. A set of all subsets of a set A. Suppose we have taken a set A. तो ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी सबसेट्स का जो सेट बनेगा दैट इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए, एंड डिनोटेड बाय पी ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसके सबसेट लिखते हैं सभी। हमने बताया था 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो तो ये सभी, एक सेट अपने आप में सबसेट होता है, एक 5 सभी का सबसेट होता है, ये तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन सभी के एलिमेंट एक सेट 1 बना देंगे। देखो ये सेट बनाया हमने, इसके सभी एलिमेंट इस सेट में है। यस, एक सेट बना देंगे, 2 एलिमेंट लेंगे जिसमें 2। अब देखो 1 2 3 4, यस, इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट ए जब बनाना लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, 5 सेट 1 2, सेट इंक्लूड 1, सेट इंक्लूड 2 एंड ओ ए पावर सेट। इन सभी सेट्स का एक बड़ा सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट। इफ एन ए हमारा कितना था, 2, एन ए कितना था, 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स of A is equal to 2 raised to the power 2. 2 raised to the power 2, that is 4. अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो 2 raised to the power करेंगे, जितने एलिमेंट है उतनी ही 2 की पावर हो जाएंगी। If a set has
n एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हों, n एलिमेंट्स हों, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, और n pa कार्डिनल नंबर ऑफ सेट pa, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, पावर सेट में ये सभी 2 रेज टू द पावर n, यहां कितने थे, n इक्वल टू 2, तो 2 रेज टू द पावर 2, यहां 4 आ गया था, यहाँ इफ n इज 2 था हमारा, n इक्वल टू 2, देन इट वाज 2 रेज टू द पावर 2, 4 था यहाँ पर, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट is 2 raised to the power n. Number of subsets of a set having n element is 2 raised to the power n. Next करते हैं, next define करते हैं comparable sets. Comparable. Two sets A and B are said to be comparable if A is subset of B और B is subset of A. A B का subset हो या B A का subset हो, then A and B are comparable sets. A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो, then A and B are comparable sets. प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नाम से ही पता लग रहा है हम प्रॉपर. A set A is said to be proper subset of set B. A B का प्रॉपर सबसेट कब होगा, if there exist some elements in B which are not element of set A. That is, for example लेते हैं, A में तो लिया हमने 1 2 और B में ले लिया 1 2 3, 1 2 3, तो हमारे पास देखो क्या है, A में 1 2, B में 1 2 3, A के सभी एलिमेंट B में है, A is subset of B, A is subset of B, but B is having some elements which are not element of A, तो यहां हम कहेंगे A is proper subset of set B. A B का प्रॉपर सबसेट है. अब करते हैं सम सेट्स ऑन रियल नंबर्स. अब करते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स. हमें पता है रियल नंबर्स इंक्लूड्स all the numbers that can be represented on a number line, that are having a space, a point on a number line. नेक्स्ट इसका सबसेट, जो पहला सबसेट हमने किया था, दैट इज नेचुरल नंबर्स. 1 2 3 एंड दैट गोज ऑन. n, सेट n जो सेट होगा हमारा 1 2 3, दिस इंक्लूड्स, दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स इंक्लूड्स, रियल नंबर्स में क्या था, दैट इज A इज सेट ऑफ all x such that x is a real number. X is a real number. X belongs to, or you may write it like this also, x such that x belongs to R real number. ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं. इस रियल नंबर्स इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आल्सो. होल नंबर्स W क्या होगा, 0 1 2 3 एंड दैट गोज ऑन. इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 and that goes to infinity. These all includes in
रियल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0. P and Q belongs to integers, Q not equal to 0. Irrational number P is set of all x such that x is irrational number. X is irrational number and irrational number. Or you may write it like this also. Set of all x such that x does not belongs to Q. X does not belongs to Q and x belongs to real numbers. X belongs to real numbers but x does not belongs to Q because Q includes Z, W and N in itself. So these all are the subsets of real numbers. अब करते हैं intervals. Yes, intervals as subset of real numbers. If A and B are two real numbers and A less than B, then first हमारा if a set of all x such that x belongs to real numbers and a less than x less than b is called an open interval written as A B. It includes all the points between A and B, not A and B. On the number line, this is A and this is B. Suppose we are not including this and this. इनके बीच के सभी पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे. इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा. दिस इज ओपन इंटरवल A and B. ओपन इंटरवल. दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. यहाँ लिख देते हैं लास्ट में ओपन इंटरवल. A, B close in common brackets. Open interval. Second देखते हैं closed interval. A, B and big brackets we are using here. In this interval, in the set form, it is set of all x such that x belongs to real number and x A less than equal to x less than equal to b. In this interval all points between A and B are included with A and B. A और B भी इसमें शामिल होते हैं. अगर नंबर लाइन पर इसमें देखें तो क्या होगा? दिस इज पॉइंट A, दिस इज B और वी आर सेइंग A इज इन द लेफ्ट, B इन द राइट, तो A इज लेस देन B. तो यहाँ पर इसको पूरे को डार्क करता हूँ मैं, इसको भी पूरे को डार्क करता हूँ और इसके बीच का भी ये सारा. दिस इज द इंटरवल A B एंड दिस इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल A एंड B. A को भी शामिल कर रहा है, B को भी शामिल कर रहा है. थर्ड करते हैं सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन. सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन. यू में से सेमी क्लोज्ड थर्ड हमारा इंटरवल, सेमी क्लोज्ड और यू में से सेमी ओपन. इसमें क्या होता है हमारे पास? एक तरफ से इंटरवल ओपन होता है, एक तरफ से क्लोज होता है. In this interval, in the set form, we will write it x such that x belongs to real numbers and
A is less than x less than equal to B। जैसे इसमें हमें पता लग रहा है, देखो A लेस देन x, x जो हमारा A से बड़ा है मगर इक्वल टू लेस देन B है, यानी B शामिल है इसमें। इन दिस इंटरवल we includes all the points between A and B, and B is included, A is not included। B को इंक्लूड है क्योंकि B की तरफ से हमारा क्लोज है, A इंक्लूडेड नहीं है। अगर दूसरे तरीके से इस इंटरवल को लिखना चाहें इसी को, तो कैसे लिखा जा सकता है? अगर अब तो हमारा ये लेफ्ट में ओपन था, अगर राइट में ओपन हो तो क्या हो? जैसे A B की तरफ से ओपन है, तो इन सेट लैंग्वेज वी विल राइट इट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड A less than equal to x less than B। A less than equal to x, that means A is included, A की वैल्यू आएगी। इसको नंबर लाइन है गया इसके नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? This is A, sorry, suppose this is A को नहीं लेंगे, B को लेंगे, B, और इसको ऐसे क्लोज, B की तरफ से क्लोज है तो B को डॉट बनाएंगे, इधर से सर्कल बनाएंगे, इसके बीच के सारे नंबर्स लिए थे। इसकी नंबर लाइन बनानी हो फोर्थ की, क्लोज फ्रॉम ए, तो इसके इस नंबर लाइन क्या बनेगी? ए की जगह डॉट बनेगा, बी की जगह सर्कल बनेगा, क्योंकि बी इज नॉट इंक्लूडेड हियर, और इसके बीच की सारे जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। तो इन दिस इंटरवल we includes all the points between A and B, A और B के बीच के सभी पॉइंट्स। A is included, B is not included, तो हमारे इंटरवल चार तरह के होंगे। एक तो क्लोज इंटरवल होगा, सॉरी ओपन कह लेते, पहले ओपन किया था हमने, ओपन इंटरवल होगा, इसमें ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स होंगे, ए और बी इंक्लूडेड नहीं होंगे। दूसरा क्या होगा? ए बी क्लोज्ड, इसमें क्या हमारे पास पॉइंट ए बी होगा, पॉइंट बी भी होगा, और उसके बीच के सारे पॉइंट्स होंगे। तीसरा क्या था? ए बी क्लोज्ड फ्रॉम बी, ओपन फ्रॉम ए, इसमें ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स होंगे, बी इंक्लूड होगा, ए नहीं होगा। और नेक्स्ट था हमारा ए बी क्लोज्ड फ्रॉम ए एंड ओपन फ्रॉम बी, इसमें ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स होंगे, ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा लेंथ ऑफ एन इंटरवल बिटवीन ए एंड बी। लेंथ ऑफ एन इंटरवल बिटवीन ए एंड बी वेयर ए इज लेस देन बी। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल between A and B where A less than B is B minus A for all intervals AB close interval and सेमी ओपन और सेमी ये में से क्लोज, सभी के लिए क्या होगा हमारा B माइनस A हमारी लेंथ ऑफ इंटरवल। करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है कि इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट all set considered are subset of a given set, then that given big set is called universal set। एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose we have taken some sets of
नंबर सिस्टम, फ्रॉम नंबर सिस्टम रियल नंबर्स का एक सेट लिया. रियल नंबर्स इंक्लूड्स रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल, सभी के सभी रियल नंबर्स में आते हैं. और कुछ हमने यहाँ पर सेट लिखे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल. तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये सभी इसके सबसेट हैं. ये सभी एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, पी ऑल आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर्स का सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट. तो नोट करते हैं यूनिवर्सल सेट. इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, इन ए particular context, all sets under consideration are subsets of a given big set. These sets we are considering, and these all are the subset of this set. Then this given big set is called universal set. Universal set denoted by U. कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यू से डिनोट करते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज आई हैव टेकन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का लिख दिया मैंने. ये सेट ए लिख लिया. ए लिखा हमने 1 to 10. एक सेट बी लिखा है यहाँ पर. एक और ए को बाद में नाम देंगे. चलो इसको हम यू नाम देते हैं. यू यूनिवर्सल सेट ही बनाएंगे. और सेट ए लिखा हमने 1 3 5 7 9. सेट बी लिखा 2 4 6 8 10. सेट सी लिखा 2 3 5 7. सेट डी लिख लिया 1 2 3. यू मे राइट ऑल सबसेट्स ऑफ यू. अगर हम ये सेट देखें, ये सारे सेट ए बी सी डी, these all are subset of this set U. तो in this context U is universal set. अगर इस context में देखेंगे तो N is subset of R, N is subset of R, W is subset of R, Z is subset of R, Q is subset of R, P is subset of R. तो these sets considered all subset of this R set. तो here क्या हो गया? This is universal set. This R is called universal set. Universal set. तो set under in a particular context, जरूरी नहीं कि एक हम यही सेट याद रखें या रियल नंबर याद रखें. किसी भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, जैसे हमारे स्कूल के सभी बच्चों का सेट है, सभी क्लासेस का अलग अलग बना दें. एक सेट पूरे स्कूल के बच्चों का बनाएं, एक सेट सभी गर्ल्स का बनाएं, एक सेट सभी बॉयज़ का बनाएं, एक सेट अलग अलग क्लासेस का बनाएं. तो जो बाकी जो सब छोटे सेट हैं अंडर कंसिडरेशन, दीज आर द सबसेट्स ऑफ गिवन बिग सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल. देन सेट ऑफ all students of your school will be considered as universal set, because all sets considered, other students, set of boys, set of girls, set of each class are the subset of this big set. Thank you.